Hello and welcome everyone. Today we shall start question answers of the poem No Men Are Foreign. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. So we have done explanation in our first lecture. Let us do question based on this stanza. What makes men strange and countries foreign? आदमियों को स्ट्रेंज क्या चीज बनाती है और कंट्रीज को हम फॉरेन क्यों कहते हैं या क्या चीज बनाती है? ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज सेपरेट कंट्रीज. जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, जो हमने धरती पर लाइनें बना रखी हैं, एक इमेजिनरी, जैसे इंडिया की ये बाउंड्री है, फिर ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, जो हमारी कंट्री के बाउंड्री से अलग जो कंट्री है वो फॉरेन है, और एंड द पीपल लिविंग इन दीज कंट्रीज टू बी स्ट्रेंज. और जो पीपल उन कंट्रीज में रह रहे हैं अदर देन आर कंट्री, उनको हम क्या कहते हैं? दैट दे आर नॉट फेमिलियर टू अस, दे आर अनफेमिलियर, दे आर स्ट्रेंज. We consider them to be strange. Now, next question. According to the poet, who should remember that no men are strange? Poet के according किसे याद रखना चाहिए कि कोई भी आदमी strange नहीं है इस धरती पर? The whole world. पूरी दुनिया को याद रखना चाहिए. Because poet has written the poem to convey this message, not to a particular person, but to the whole world. Question 3. Explain beneath all uniforms a single body breathe. इस लाइन को explain करना है. This line means that the outward appearance of people varies because of difference in their clothes, but under these clothes all human beings are same. देखो, बाहर का पहनावा अलग अलग होता है, कोई क्या डालता है, कोई क्या डालता है. People wear different attires, उनके कपड़े अलग अलग हैं, लेकिन बॉडी तो सेम है, उनका फिजिक तो सेम है. दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें हैं. Physical structure of all human beings and all features are same. All human bodies live and breathe in a similar fashion. जितनी भी ह्यूमन बॉडीज है सब रहती हैं या सांस लेती हैं सिमिलर फैशन में. इसके अंदर मतलब सारी बॉडी के फंक्शन सेम है. हम we breathe through nose, we see with eyes, everyone in the world. Okay. Question number 4. Who are referred to as our brothers in the stanza? Our brothers. किसको रेफर किया गया, किसको कहा गया? The people who live in countries other than ours have been referred to as our brothers. जो लोग हमारी कंट्री में नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Our brothers. वो हमारे भाई हैं. Because we all have similar emotions, joys and sorrows. क्योंकि हम सबके इमोशन सेम है, हम सबकी रिस्पोंड करने की टेंडेंसी सेम है, एक्सप्रेशन सेम है, खुशियां और दुख सबके रीजंस एक जैसे. Question 5. Explain in which we all shall lie. इस लाइन को एक्सप्लेन करना है. In which we all shall lie. The poet says that at the end of our lives we all shall lie buried in the same earth. पोएट क्या कहना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ अवर लाइफ, अंतिम समय में हमें क्या है? हमने मरना ही है और हम सबको बरेड होना है, दब जाना, दफनाया जाएगा इन द सेम अर्थ, इन द सेम ग्रेव. हम सब
बरिड हो जाएंगे, मर के हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे. Which poetic devices can you find in the stanza? इस स्टैंजा में कौन कौन से है? मेटाफर है, enjambment है, and alliteration. I have already explained poetic devices in my second lecture. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by vast long winters starved. Their hands are ours, and then in their lines we read a labor not different from our own. So let us see the questions. What does they refer to in the first line? They refers to the people of countries other than ours. They किसे कहा गया है? जो लोग हमारी कंट्री में नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, जिन्हें हम फॉरेनर्स कहते हैं. Whom we consider to be strange. हम उन्हें strange मानते हैं, unfamiliar मानते हैं. What are they aware of? वो किसको जानते हैं? They are aware of the benefits of sun, air and water. Like us, they also draw benefits from these elements of nature. उनको किस चीज के बारे में पता है? जिन चीजों के बारे में हमें पता है उनको भी वही पता है. बेनिफिट्स ऑफ सन, सन की एनर्जी. एयर से वो ब्रीथ करते हैं. They breathe through oxygen. We also need oxygen to breathe in. And water. और वाटर भी उनको पता है कि प्यास लगी है तो पानी पीना है. सब लोग पानी पीते हैं ना पूरे दुनिया में, कोई और चीज तो नहीं पीता. और वो हमारी तरह ही इन चीजों से बेनिफिट लेते हैं, मतलब फायदा उठाते हैं. इन्हीं को एक्सप्लॉइट करते हैं और इन्हीं से अपनी जो डिजायर्स हैं, जो नीड्स हैं, फुलफिल करते हैं. अब सोलर एनर्जी हमें भी पता है. सोलर एनर्जी, आजकल सोलर पैनल्स कितने, उनको भी पता है सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. ऐसे एयर से, टरबाइन से. दे ऑल्सो नो विंड मिल्स, वाटर टरबाइन्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. उनको भी इनको यूज करना आता है. इन चीजों को जो नेचर ने हमें दी है उन चीजों को यूज करना आता है. हमें भी यूज करना आता है. तो हम इन्हीं से ही तो एनर्जी यूज कर रहे हैं. Question number 3. Explain the expression their hands are ours. इस expression को explain करो कि their hands are ours. उनके हाथ हमारे कैसे हैं? हमारे हाथ उनके जैसे कैसे हैं? उनके हाथ हमारे जैसे कैसे? This means that the people from other countries to work hard like us with their hands to earn their livelihood. इसका मतलब ये है कि पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज के पीपल हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, हमारी तरह ही मेहनत करते हैं हाथों से अपनी जिंदगी की नीड्स को, डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए. टू अर्न देयर लिवलीहुड मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए वो भी हाथों से मेहनत करते हैं, एज वी डू, जैसे कि हम करते हैं. Explain a labor not different from our own. So जो लेबर है, जो हार्ड वर्क है, अलग नहीं है उनका, हमारे जैसा ही है. This expression means that the hard work done by the people who live in the other countries is not different in any way from the one that we do. इस expression का मतलब यही है कि जो हार्ड वर्क हम लोग करते हैं, वैसा ही हार्ड वर्क सिमिलर वे में दूसरे लोग, फॉरेनर्स, भी उसी वे में करते हैं. All of us have to toil and work hard in a similar way for survival. हमें जिंदा रहने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. सर्वाइवल के लिए वर्क करना पड़ेगा. किसी चीज को अर्न करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. विदाउट हार्ड वर्क वी कैन नॉट डू एनीथिंग. कुछ भी हमें ऐसे नहीं मिल जाएगा, हमें हार्ड वर्क तो करना ही है. तो हमें करना है, उनको भी ऐसे ही नहीं मिलने वाला. सो
These traits are also similar. They too aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by wars long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Why do they have eyes like ours? They wake or sleep. Why do they have eyes like ours? They wake or sleep. उनकी आंखें भी हमारे जैसे क्यों हैं, जागती और सोती क्यों हैं? They have eyes like us because they sleep and wake up each new day like us. उनकी हमार उनकी जो आंखें हैं हमारे जैसी इसलिए हैं क्योंकि वो भी जागते हैं और सोते हैं प्रत्येक नए दिन उठते हैं, हर एक रात को सोते हैं और प्रत्येक नए दिन उठ जाते हैं. Even with a different color and shape of eyes, they are similar to us in every way. चाहे उनकी आंखों की शेप अलग है, कलर अलग है, लेकिन what is the function of eyes? Function of eyes is same. Sleep and wake up. ये नहीं कि जिसकी आंखें की शेप अलग है वो कम देर सोएगा और जिसकी आंखों का कलर अलग है वो ज्यादा देर जागेगा. This is not like this. What do you understand by common life? Common life का मतलब क्या है? Common life means life anywhere in the world that has similar features, birth and death, joys and sorrows, youth and old age. Common life का मतलब है जो भी लाइफ है दुनिया में जहां भी लोग हैं उनके फीचर्स क्या हैं, सिमिलर हैं. जन्म और मृत्यु, खुशी और गम, जवानी और बुढ़ापा, इसी सर्कल में तो इंसान जी रहा. लाइफ का सर्कल यही है, बर्थ एंड देन डेथ, जॉयज एंड सॉरोज, यूथ एंड ओल्ड एज. दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ एवरीवन्स लाइफ कि लाइफ हमारी इन्हीं सर्कल्स में घूम रही है. पूरी दुनिया के लोग इसी चीज में घूम रहे हैं. उनको पैदा होना है, बड़े होना है, बूढ़ा होना है एंड देन मर जाना है. बीच में क्या जॉयज, कुछ नहीं मिलेगा तो उदास हो जाएंगे, कुछ मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे. तो सभी लोगों का यही फीचर्स हैं. The commonness of common life is experienced by all people of the world, regardless of the country in which they live. तो कॉमननेस क्या है? यही कॉमननेस है, यही कॉमन लाइफ है जो हर लोग, दुनिया में हर लोग इन्हीं चीजों को ही एक्सपीरियंस करते हैं. ये नहीं कि फॉरेन कंट्रीज में उनके एक्सपीरियंसेस अलग हो जाएंगे, उनकी डेथ नहीं होगी, उनको जॉयज मिलेंगे, वो हमेशा जवान रहेंगे, ऐसा नहीं है. फीचर्स सेम है, यही रहेगा सब. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose us, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. Whenever we are told, who tell us all that in this extract? कौन हमें बताता है इस extract में? Who that this extract talks about? किसके बारे में बात कर रहा है? कौन हमें बता रहा है कि तुम इससे नफरत करो? ये कोई सोर्स तो है जो हमें इंस्टिगेट कर रहा है, हमें मोटिवेट कर रहा है, नेगेटिवली मोटिवेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है. कौन कर रहा है? पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड रिलीजियस लीडर्स. देखो कॉमन मैन का ना सिर्फ यही होता है कि अच्छी जिंदगी जीना. उनको लड़ाई में ज्यादा, कंट्रीज की लड़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता.
आपस में छोटा मोटा लड़ लेंगे नेबर्स, पर लार्ज स्केल पे ऐसा नहीं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से वॉर कर रही है। तो ये सब जो होते हैं ना, पॉलिटिकली या मिलिट्री या रिलीजियस लीडर्स काम करते हैं। वाई डू वी समटाइम हेट आवर ब्रदर्स? हम अपने ही भाइयों से, फॉरेनर से क्यों नफरत करते हैं? We sometimes hate our brothers because politicians and religious leaders instigate us. जो पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स हैं वो हमें क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं, हमें रीजंस बताते हैं दूसरों से नफरत करने के लिए। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो तुम सबको पता ही रही होगी, हिस्ट्री में तो पढ़ा ही। तो वही कह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना मतलब निकालना है, क्योंकि उनके पास पावर है भैया, कुछ तो करना ही है ना। तो वो लोगों को, कॉमन मैन को इंस्टिगेट करते हैं। वी आर टेकन इन बाय देयर लाइज अबाउट आवर डिफरेंसेस and begin to consider our brothers as strange and foreign. तो हम क्या होते हैं, उनकी लाइफ से इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि वी गेट कैरिड अवे, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। हम तो कहते हैं भैया यही सत्य है, इसने बोल दिया तो भैया ठप्पा लग गया, भाई सच बोल रहा। ये डिफरेंट कास्ट क्रीड या डिफरेंट फॉरेन कंट्री का है, ये बेकार ही होगा भैया, इसने ठीक लॉजिक दिया। तो हम उनके वर्ड्स में कैरिड अवे हो जाते हैं और तब क्या करते हैं, हम लोगों से नफरत करने लग जाते हैं। देखो, हर कम्युनिटी में या हर कंट्रीज में कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं, बट एक गलती करे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी कम्युनिटी ही बेकार हो गई, ठीक है। लेकिन हमारे को प्रोवोक किया जाता है कि कौन करते हैं प्रोवोक? पॉलिटिशियन एंड रिलीजियस लीडर। वो हमें इंस्टिगेट करते हैं, हम उनकी चिकने चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और अपने ब्रदर्स को, अपने भाइयों को फॉरेन या स्ट्रेंज समझने लगते हैं। हाउ डज हेट्रेड अफेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स? कैसे अफेक्ट करती है? Hatred makes people betray, condemn, and rob their fellow brothers and sisters. This leads to war and destruction. देखो, हेट्रेड जो है ना, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बहुत ही अफेक्ट करती है। नफरत, हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उनको धोखा देते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट को लूट लेते हैं, उनकी रिस्पेक्ट को। अपने फेलो ब्रदर्स और सिस्टर्स को हम धोखा देने की, बेट्रे करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेट क्या होता है? दिस लीड्स टू वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। इससे क्या होता है? वॉर होती है और डिस्ट्रक्शन होता है। ये तो एक बट नेचुरल बात है। टू एवरी स्टिमुलस देयर इज अ रिस्पॉन्स। ये बहुत एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। टू एवरी स्टिमुलस देयर इज अ रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है? हम किसी को पॉजिटिवली लेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो वो हमें प्यार से ही रिस्पॉन्ड बैक करेगा। और किसी के साथ हम बदतमीजी से पेश आएंगे तो उसकी भी वही टेंडेंसी हो जाएगी कि बदतमीजी से पेश आए। तो जैसे हम बिहेव करेंगे वो भी वैसे ही बिहेव करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो धरती पे अवतार है जो ऐसे नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम बिहेव करोगे, ह्यूमन नेचर आजकल ऐसा है, तुम्हें माफ नहीं करेगा, उसी तरह से ही तुम्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो तुम किसी को स्टिमुलेट करो ही मत ना, क्योंकि तुमने तो उसका नुकसान कर दिया, पर बी प्रिपेयर्ड कि तुम्हारा भी नुकसान होने वाला। तो ऐसे ऐसे ये कम्युनिटी फिर वॉर हो जाती है, चाहे कम्युनिटी वॉर हो फिर ये कंट्री वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है? वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। It is the human earth that we defile. Our hills of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign,
and no countries. Strange. What is human earth? Human earth क्या है? ये human earth is the human world that is comprised of all countries, races and creeds. भैया caste, creed, races, religion एक लाइन होती है, we should never discriminate on the basis of caste, creed, color, religion. ये तो भैया एसएसटी में, सिविक्स में तो शुरू ही हो जाता है, सिक्स्थ में तो, सिक्स सेवेंथ एट ये चलता ही रहता है. तो ये तो हमें वैसे तो पता ही है कि ह्यूमन वर्ड में क्या है, क्या कॉम्प्राइज है, किया हुआ है. ह्यूमन वर्ड में है सारी कंट्रीज, रेसेस एंड डिफरेंट बिलीफ के लोग, डिफरेंट बिलीव्स के पीपल. हाउ डू वी डिफाइन द ह्यूमन अर्थ? हम कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं ह्यूमन अर्थ को? पॉल्यूट तो हम कर रहे हैं. We defile or pollute the human earth by using deadly weapons which causes death and destruction. हम pollute कर रहे हैं अपनी मदर अर्थ को, ह्यूमन अर्थ को deadly weapons यूज करके, जिससे क्या होती है, लोग मरते हैं और डिस्ट्रक्शन, सब जगह विनाश हो जाता है. Modern day weapons and modern industries cause irreparable damage to the environment. आजकल जो क्या है मॉडर्न डे वेपन्स, ये बहुत ही घातक होते हैं. न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, दे आर वेरी डेंजरस फॉर द मदर अर्थ एंड मैनकाइंड. पूरा पॉल्यूट कर देंगे एनवायरमेंट. जो इनके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं बहुत ही बुरे होते हैं. हमने यूज कर लिए तो एटमॉस्फेयर, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, वो भी पोल्यूट होता है और ये हमारी बॉडी को भी बहुत अफेक्ट कर देते हैं फिजिकली. जापान का तो तुमने एग्जाम्पल देखा ही है कि आज तक भी लोग अच्छे से, उनके अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटी कई लोगों में आज तक भी है. तो इनका जो डैमेज है वो irreparable है, जल्दी से नहीं होता रिपेयर. What are the hells of fire and dust and how do they outrage the innocence of air? Hells of fire and dust. देखो नाम से ही, फायर, डस्ट, एशेस, आग, धुआं, राख, ये कैसे इम्प्योर कर देते हैं एयर को, या फिर मैनकाइंड को ही हम क्या कोरिलेट कर सकते हैं. The hells of fire and dust stands for the devastation created and caused by the arms and ammunition used in wars. इसका मतलब ये है कि devastation, विनाश, किसके द्वारा हुआ? By the arms and ammunition, जो हमने बहुत डेडली वेपन्स, बुलेट्स, डेडली वेपन्स वॉर में यूज करी. द डस्ट एंड स्मोक दस पोल्यूट द एयर. अब उस जो हम यूज कर रहे हैं उसके बाय प्रोडक्ट्स भी तो होते हैं. डस्ट और स्मोक क्या करते हैं? पोल्यूट कर देते हैं एयर दैट वी ब्रीथ. हमें सांस लेने में दिक्कत होती है इन चीजों से. We are not able to breathe. They are very dangerous to our lungs also. तो ये हमें फिजिकली भी हर्ट कर रहे हैं और हमारे एनवायरमेंट को, ओजोन लेयर को भी डैमेज कर रहे हैं. The freshness and purity of air that nature has blessed us with is outraged. वो क्या हो रही है? खराब हो रही है, पोल्यूट हो रही है, क्षतिग्रस्त हो रही है. क्या? फ्रेशनेस ऑफ एंड प्योरिटी ऑफ एयर. जो एक फ्रेश एयर है, प्योर एयर है, जो हमें नेचर ने दी है, वो क्या हो रही है? क्षतिग्रस्त हो रही है. हम कर रहे हैं आम से, धुएं से, राख से पॉल्यूट कर रहे हैं. और
Along with this, the innocence of human mind is also spoiled. जो innocent mind है वो भी क्या हो रहा है बेचारा, वो भी इसके कारण अफेक्ट हो रहा है, उसको भी दुख झेलना पड़ रहा है। अब क्या होता है कि दो कंट्रीज में अगर किसी लीडर्स के आपस में लीडर्स के व्यूज कोइंसाइड नहीं करते, वो लड़ाई उनकी हो जाती है और पिसता कौन है? आम आदमी, इनोसेंट माइंड। What does the poet want to convey by telling us that it is the human earth that we defile? क्या कन्वे करना चाहते हैं कि ये ह्यूमन अर्थ है जिससे हम खराब कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, कैसे? The poet wants to convey that the wars cause a massive destruction of life and property. पोएट कहते हैं कि मैसेज कन्वे करते हैं कि वॉर से ही बहुत भयानक डिस्ट्रक्शन होती है, विनाश हो जाता है जिंदगी का भी और प्रॉपर्टी का भी, नेचर का भी। नेचर गिफ्ट्स गिवन टू अस बाय नेचर, कितने गिफ्ट्स मिले हुए, वाटर पोल्यूट हो जाता है, एयर पोल्यूट हो जाता है। दे ruin the clean and green environment of earth and breed hatred and enmity. वो ग्रीन, कितनी सुंदर जो हमारी धरती है, कितनी क्लीन, कितनी ग्रीन। कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं विच आर स्टिल अनटच्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम उसको एक्सप्लोर करें ना, वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, वहां जाके शांति मिलती है। लेकिन अब देखो, अगर वॉर हो जाए, वो सारी ग्रीनरी जो एनवायरमेंट में ग्रीनरी है और एक प्योरिटी है एनवायरमेंट में, उसको भंग कर देती है। और क्या ब्रीड करेगी? हेट्रेड, नफरत, शत्रुता, एनिमिटी, शत्रुता। ये वॉर ही करती है, शत्रुता बढ़ाएगी, नफरत बढ़ाएगी, इसका यही काम है, और अर्थ को पोल्यूट करेगी। Hence, no one benefits from war because the damage caused to earth is to be borne equally, for we all share the same same earth. For we all share the same earth, not earthly. देखो, तो ये हमारी जो डैमेज होएगी, अर्थ हमारा जो डैमेज होएगी, इन वार से ही डैमेज होएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि इस डैमेज का भुगतान दुनिया में, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हाँ भाई वॉर तो हुई यूएसए में तो हमारे को कुछ नहीं होगा, या वॉर हुई ऑस्ट्रेलिया और किसी और कंट्री तो हमें कुछ नहीं होगा। कहीं भी तुम डेडली वेपन्स यूज करते हो तो उसका इफेक्ट पूरे एनवायरमेंट पे होता है, हमें भी उसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा झेलना पड़ेगा। ठीक है? For we all share the same earth, not earthly, same earth. Why does the poet call harvest peaceful and wars as winter? पोएट ने हार्वेस्ट को पीसफुल और वॉर को विंटर्स क्यों कहा है, क्यों कंपेयर किया? Harvest are cold, peaceful because they bring prosperity and abundance. हार्वेस्ट को पीसफुल, शांतिमय और इसलिए कहा गया क्योंकि वो हमारे लिए खुशहाली और भरपूरता लाती है। हार्वेस्ट क्या होता है? राइपेंड क्रॉप्स, जो फसलें होती हैं, हम पीसफुली खाते हैं उसको। War is like the severe and harsh winter that ruins the crops and starves people. वार को कंपेयर किया है हार्श विंटर से, खतरनाक सर्दियां, जो बिल्कुल भयानक सर्दियां होती है, वो क्रॉप्स को रुइन कर देती है, खराब कर देती हैं, और पीपल
को भूखा मार देती है। तो वॉर भी ऐसा ही करती हैं और सर्दियां भी ऐसे ही करती हैं। तो वॉर को हार्श विंटर से कंपेयर किया है। इट इज ओनली द पीसफुल टाइम्स दैट ब्रिंग हार्मनी एंड कंटेंटमेंट। पीसफुल टाइम जब हमारे मन में शांति होगी, एनवायरमेंट में शांति होगी, वही खुशियां और सेटिस्फैक्शन, हार्मनी, खुशियां एंड कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन लाएंगी। वॉर डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। वॉर क्या करेगी? सब कुछ तहस नहस कर देगी। फोर्सेस पीपल टू फेस हंगर। और क्या करेगी? मजबूर कर देगी लोगों को भूख, गरीबी, पॉवर्टी, डिजीज एंड डेथ के लिए। वॉर से क्या होगा? भूखमरी, गरीबी, बीमारी और मौत, यही मिलेगा सब। How many common features can you find in stanza 2? Pick out the words. The common feature listed in stanza 2 are like us, the people in the other countries, to enjoy sun, air, water, and peaceful harvests. हमारी तरह ही दूसरी कंट्री के लोग एंजॉय करते हैं सन को, एयर को, वाटर को और हार्वेस्ट क्रॉप्स इन पीसफुल टाइम। Like us, they too hate starvation caused by long drawn wars. हमारी तरह भी उनको नफरत है भूखमरी से जो वॉर से आती है। Like us, they too work hard for their livelihood by using their hands. हमारी तरह ही वो लोग बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। उनको हाथों से बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है हमारी तरह ही। Who tells us to hate our brothers? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? The politically motivated and power-hungry people tell us to hate our brothers during war time. जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और जिनको जो लोग जिन्हें ताकत की भूख होती है, वो हमें समझाते हैं, रीजंस देते हैं कि दूसरों अपने ही भाइयों से नफरत करें। यही चीजें तो वॉर को प्रोवोक करती हैं। The poet says that we should not carried away by such lies. Poet क्या कहते हैं? कि हमें उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। If we do so, अगर हम ऐसा करेंगे, it would result in our own dispossession, betrayal and condemnation. अगर हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट अल्टीमेटली क्या होगा? हमारी प्रॉपर्टी का लॉस ही है, हमें भी धोखा मिलेगा और हम ही निंदित होंगे। उनका तो होगा ही होगा, साथ में हमारा भी होगा।